Hello students, welcome to the channel SNW Physics Classes. If you really understand the concepts taught here, please turn the black thumb blue. That means like the video, share with your friends and subscribe to the channel SNW Physics Classes. Do not forget to hit the bell icon for the latest updates. Stay connected with me on Facebook, Instagram, or you can write using my Gmail ID. Links are given in the description box. This is the series of SC Verma solution and we are solving the numerical problems of chapter 3, that is electricity. And in this video we are going to deal question number 1 to 15. For the first and second part of the video you can click on the link given in the description box. So let's begin with the video. Question number 11. A uniform wire of resistance R is cut into two equal pieces and these pieces are joined in parallel. What is the resistance of the combination? ठीक है, ये कह रहा है कि एक यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का वायर हम लोगों ने टू इक्वल हाफ में डिवाइड किया. ओके, टू इक्वल हाफ में हम लोगों ने डिवाइड कर लिया. Then it is asking that question is saying that what is the resistance of the combination. Okay, तो अगर R अगर इसका resistance था and we know that resistance of wire is directly proportional to its length. ठीक है, तो टू इक्वल हाफ में हम लोगों ने इसे डिवाइड कर दिया तो जो नया रेसिस्टेंस हो गया दोनों वायर्स का that is R/2. It is also written here resistance of wire is directly proportional to its length. Hence uniform wire resistance R is cut into two smaller pieces. The resistance of each of the smaller wire would be R/2. ठीक है? When connected in parallel, the equivalent resistance in parallel combination is given by this relationship. 1 by R cube means 1 by equivalent resistance is equal to 1 by R1 plus 1 by R2. यहाँ पे दो ही resistances दिए हुए हैं. Okay. So R1 मेरा है R/2. तो अगर हम लोग लिखते हैं इस तरह से 1 by R/2 plus 1 by R/2. ठीक है, फिर से अगर हम लोग इसको लिख रहे हैं then this 2 will go to numerator. ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा. सो इस तरह से हम लोगों ने लिखा है 2 by R plus 2 by R. ओके, 4 by R हो जाएगा. 1 by R को हम लोगों ने फिर इसका रेसिप्रोकल किया, दैट इज इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ the combination will be R/4 ohm. Okay, thus the equivalent resistance of the combination is R/4 ohm and this is the answer to this question. Question number 12. You have three resistor of 9 ohms each. ठीक है, यहाँ पे तीन resistors दिए हुए हैं और तीनों का जो resistance है that is 9 ohm. By combining them with what can be the highest resistance, the lowest resistance, and how can you combine them to get the resistance of 12 ohm. Okay, let us see the combination here. For the highest resistance, let us consider the combination in series. ठीक है, हम लोग जानते हैं कि जब हम लोगों को रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, मैक्सिमम चाहिए होता है, तो जो मेरा कॉम्बिनेशन होता है दैट इज इन सीरीज. तो फर्स्ट केस में हम लोग लेते हैं कि तीनों रेसिस्टर्स को हम लोगों ने सीरीज में कंबाइन किया है. ओके, R1, R2 एंड R3. ठीक है, तीनों रेसिस्टर्स को हम लोगों ने सीरीज में कंबाइन किया है. तो सिंपल हम लोग उसको ऐड कर देंगे सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए कि R1 प्लस R2 प्लस R3. सो 9 प्लस 9 प्लस 9 विल बी 27 ओम. ठीक है, फर्स्ट केस में हम लोगों ने देख लिया. लोएस्ट रेजिस्टेंस वी हैव टू कनेक्ट इन पैरेलल. ठीक है, लोएस्ट रेजिस्टेंस के लिए हम लोग को कॉम्बिनेशन को पैरेलल में करना होगा. सो इस तरह से हम लोग फाइंड आउट करते हैं. इन पैरेलल कॉम्बिनेशन रेसिप्रोकल्स ऑफ रेजिस्टेंसेस ऐड करते हैं हम लोग. 1 by R इज इक्वल टू 1 by R1 प्लस 1 by R2 प्लस 1 by R3. ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे देन 9 की जो हमारी एलसीएम हो जाएगी दैट विल बी 9 and 1 plus 1 plus 1 plus 1. ठीक है, 3 by 9. So the equivalent resistance in the lowest possible resistance we will get 3 ohm. ठीक है, अब ये पूछ रहा है थर्ड क्वेश्चन कि how can you combine them to get the resistance of 12 ohm. यहाँ हम लोगों ने देखा कि जब हम लोगों ने तीनों को
सीरीज में लिया, देन वी विल गेट द हाईएस्ट दैट इज 27 ओम। और जब हम लोगों ने तीनों को पैरेलल में लिया, देन वी विल गेट 3 ohm. Okay, now let us see the third part of the question. It is here, that is, the only possible arrangement can be done is that connect two resistors in parallel and one in series. ठीक है, तीनों को तो सीरीज में हम लोग कर नहीं सकते बिकॉज वी हैव सीन दैट। तीनों को पैरेलल में भी हम लोगों ने करके देख लिया, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोगों को दो रेसिस्टेंसेस को पैरेलल में करना होगा, जस्ट लाइक दिस। लेट मी ड्रॉ हियर। दो रेसिस्टेंस को हम लोगों ने पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किया और एक को सीरीज में, सो दैट वी कैन गेट द थर्ड टाइप ऑफ रेसिस्टेंस। जो थर्ड रेसिस्टेंस मेरा आ सकता है, यही एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन बचा हुआ है। सो लेट इट बी R1, R2 एंड R3। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे, सो 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, यहाँ पे हम लोग तीनों जो है R ही के इक्वल है, सो वी विल राइट हियर 1/R1 प्लस 1/R2 इज इक्वल प्लस R3। ठीक है, 1/9 प्लस 1/9 ये हम लोग अलग सॉल्व कर देंगे, प्लस 9/2 प्लस 9, तो हमारा जो रेसिस्टेंस आ रहा है दैट इज 13.5 ओम। ठीक है, रेसिस्टेंस आ रहा है मेरा 13.5 ओम। तो पॉसिबल नहीं है कि जो हमारा रेसिस्टेंस है इक्विवेलेंट वो 12 ओम आए। ठीक है, बुक में आंसर पूछ रहा है कि कैसे हम लोग कंबाइन करेंगे कि 12 ओम आंसर आएगा, बट इट इज नॉट पॉसिबल टू गेट द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस 12 ओम। Question number 13. How will you join the resistors of resistances 3 ohm, 6 ohm and 8 ohm to get the equivalent resistance of 10 ohm? ठीक है, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि अगर हम लोग सीरीज में इसे कंबाइन कर रहे हैं तो 3 + 6 + 8, ये 10 तो हो नहीं रहा है, तो यहाँ पे हम लोग रेसिस्टेंस अगर हम लोग पैरेलल में कंबाइन कर रहे हैं तो भी बहुत ज्यादा कम हो जा रहा है। तो हम लोग का एक ही कंडीशन यहाँ पे बचता है, दैट वी विल कनेक्ट two resistors in parallel combination and one resistor in series। ठीक है, यहाँ पे एक ही कंडीशन बच रहा है, जब हम लोगों को 10 ओम मिलेगा तो ये 3 ओम वाला रेसिस्टर और ये 6 ओम वाला रेसिस्टर वी विल कनेक्ट इट इनटू सीरीज कॉम्बिनेशन एंड थर्ड वन विल बी इन we will connect it into parallel combination and third one will be in series combination. So R1, R2, R3, to get the equivalent resistance of 10 ohm, let us connect two resistors in parallel and one in series. तो दोनों को जब हम लोग कनेक्ट करेंगे पैरेलल में तो हमारा कुछ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1/R, हम लोग लेट इट बी 1/R, सो 1/3 प्लस 1/6 कैलकुलेट करने के बाद वी विल गेट 2 ओम। तो हमारा जो सीरीज है या फिर जो हमारा कॉम्बिनेशन है कुछ इस तरह से हो जाएगा। मीन्स ये जो हमारा कंप्लीट ये जो सर्कल है, ये रेसिस्टर, ये मेरा इक्विवेलेंट इसका कितना आ गया 2 ओम, और ये हमारा इक्विवेलेंट ऑलरेडी यहाँ पे पता है कि ये 8 ओम का रेसिस्टर है। सो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ 3 रेसिस्टर विल बी आर, ये हम लोगों ने इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस माना था यहाँ पे, R plus R3 that is 2 plus 10 is equal to 2 plus 8 is equal to 10 ohm। ठीक है, ये हमारा आंसर है बिकॉज क्वेश्चन इज आस्किंग हाउ विल यू कनेक्ट these resistors to get the equivalent resistance of 10 ohm। Question number 14, find the current through the circuit shown in the figure 4.E1, also find the potential difference across the 20 ohm resistor। ठीक है, यहाँ पे हमारा कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, here is R1 is equal to 20 ohm and R2 is equal to 15 ohm। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है पोटेंशियल डिफरेंस, इट इज गिवन 7 volt। We know that in series combination current remains same। ठीक है, करंट जो है हमेशा सेम होगा और पोटेंशियल डिफरेंस जो है अलग अलग रेसिस्टेंसेस के लिए अलग अलग होता है। ठीक है, now given that R1 is equal to 20 ohm, R2 is equal to 15 ohm, equivalent resistance will be, क्योंकि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है तो डायरेक्टली हम लोग इसको ऐड कर देंगे,
equivalent resistance will be 35 ohm. Now potential difference of the cell is 7 volt. Using Ohm's law, V is equal to I into R, we will calculate the value of I. 7 is equal to I into 35. 35 हम लोगों ने अभी calculate किया equivalent resistance of this combination. Okay, I is equal to 1 by 5, that is 0.2 ampere. Also, we have to find out the potential difference across the 20 ohm resistor. So let us see the solution again. Okay. Now potential difference across the resistor of 20 ohm. 20 ओम का जो हमारे पास रेसिस्टर था उसका जो है पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग को फाइंड आउट करना है. V इज इक्वल टू आई आर. सो आई अभी हम लोग ने कैलकुलेट किया. वी नो दैट इन सीरीज कॉम्बिनेशन द करंट रिमेन्स कांस्टेंट. ठीक है, तो 0.2 इंटू 20 ओम के रेसिस्टर से ही हम लोगों को उसका पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है. सो वी विल गेट 4 वोल्ट. दिस इज द सेकेंड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. Question number 15. Find A, equivalent resistance, B, current passing through the cell, and current passing through the 30 ohm resistor in the circuit shown in figure 4.E2. ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक सर्किट है. यहाँ पे एक सर्किट है जिसमें दो रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड हैं, 30 ओम एंड 15 ओम के, और ये 6 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है. So we have to find out the equivalent resistance, current passing through the cell and current passing through the 30 ohm resistor. Let us see the solution. Let us see the solution. Given that potential difference is 6 volt, resistor 1 means R1 is 15 ohm, R2 is 30 ओम. इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि एक पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो हम लोग इसके रेसिप्रोकल्स को ऐड करेंगे. सो 1 बाई आर क्यू इज इक्वल टू 1 बाई आर वन प्लस 1 बाई आर टू, और फिर 1 बाई 15 प्लस 1 बाई 30. इसको कैलकुलेट करने के बाद वी विल गेट 1 बाई 10, और यहाँ पे इन दोनों का रेसिप्रोकल है तो 1 बाई आर क्यू इज इक्वल टू 1 बाई 10, तो आर क्यू कितना हो जाएगा मेरा 10 ओम. सो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है that is 10 ohm. Current passing through the cell, that is using Ohm's law, we will find out V is equal to IR. So V यहाँ पे हम लोगों को पता है 6 volt है, R is 10, I is equal to 6 by 10, that is 2 by 3, और इसको कैलकुलेट करने के बाद we will get 0.6 ampere. Now the current passing through the resistor of 30 ओम. ठीक है, जैसे अभी हम लोग देखा कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है उसमें करंट कांस्टेंट होता है और जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है उसमें वोल्टेज कांस्टेंट होता है. सो यहाँ पे करंट यहाँ पे दोनों रेसिस्टर्स के लिए अलग अलग है, तो हम लोग को फाइंड आउट करना है कि ये वाले रेसिस्टर में कितना करंट फ्लो हो रहा है. नाउ द करंट पासिंग थ्रू द रेसिस्टर ऑफ 30 ओम इज V इज इक्वल टू I into R. So I will be 6 by 30, that is 1 by 5. So the answer is 0.2 ampere. ठीक है, ये जो दूसरा हमारा जो 30 ओम का रेसिस्टर है उसमें 0.2 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है. If you have any problem, any doubt related to any calculation in this video, please comment in the comment section, like, share and subscribe to my channel. Thank you very much for watching.